वंदामी से मैं वंदामी से रिक्वेस्ट करूंगा कि नवकार मंत्र से वंदामी नमः स्वामी करे। वंदामी समनी जी। ओम ह्रीं नमो अर्हन्तान्। ओम ह्रीं नमो सिद्धान्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम्। एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपापनाशनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मङ्गलम्। वंदामी समनी जी, थैंक यू। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू ऑल इंदू जी की बेटी उन्नति को बुलाना चाहूँगा। उन्नति जी, इफ यू वांट टू say a few words about your mom. Hello, everyone. Yes, thank you for being here today. As you know, my mom was a beautiful light in this world. She was very, very helpful, always wanting to make sure that everyone had what they needed. And if there was anything that she could do to help, she was always there by your side, making sure that she could play her part. Personally, for me and my journey with Jainism, my mom was the one that encouraged me to learn Bhaktambar from a very, very young age, so that I was able to master all 48 verses by the time I was 9 years old.
And she encouraged me and pushed me to do so and learn other stotras and mantras as well. And not only, and she didn't grow up as a Jain, right? She married my father, who's Jain, but she was a very pious and religious woman that really took to and saw the power of God in virtually everything. And that's what she translated to me as her daughter, to make sure to appreciate the power of God and how God can guide us through good times in our life and also hard times like this in our lives. So I feel confident that my mom provided me with the tools that I need to be able to carry on her legacy through the help and guidance of Samniji as well. And I miss her very, very dearly, but I know that she lives on in a certain way, shape, or form through me and through all of you all who remember her fondly. Thank you, Unnati ji. Next, I would like to request Rakesh ji. Rakesh ji, is he next to you, Unnati ji? Trying to. Vijay bhai, Yeah, Vijay bhai. Okay, Vijay bhai, okay, I would like to ask Vijay bhai then next to say a few words. Vijay bhai, can you unmute yourself? Jai Janendra, everybody. Mehul bhai, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. So, Vandami Nama Swami Samani ji, or Jai Janendra to everybody. I have known probably Indu Ben and Rakesh bhai even before they moved to Orlando. In fact, they were in the Fremont, California area where my younger brother and his wife were knowing each other as a family friend. And when they moved to Vero Beach, close to Orlando, in fact, my brother told me one day that, okay, there is someone who is moving from here and let's make sure that they get settled. Well, they were so social and religious that I don't think they needed any introduction to anyone. And as Unnati said, Indu Ben was very religious, and most of it, not only religious, she was very entertaining and very friendly. She had invited most of us, people who were living at that time in Orlando, to Vero Beach. We stayed there with her overnight, even invited other friends. They used to come and participate in the camps from day one. And when we got the news, I was in India and Indore, and Sushma called me one day that, okay, I've got a news which is not really good. I said, what really happened? And she said, well, I just came to know that Indu Ben passed away. I couldn't control myself, obviously, and neither she, because we have known each other, our kids have known each other for a long time. And all I can say is, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और राकेश भाई, विभोर एंड उन्नति को हिम्मत दे. It's easier said than done, but obviously some time in your life you don't have a choice. Okay, so with that I'll stop here. Thank you, Mehul bhai. Thank you, Vijay bhai, for your kind words. Next, I would like to request Rakesh ji. Mute him. Mehul bhai, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay.
वंदामि नमनसामि समनी जी। सभी भाइयों और बहनों को जय जिनेंद्र। राकेश जी, जी। आपका 2 डिवाइस ऑन है लगता है, दूसरी डिवाइस ओके। की अगर आप, क्योंकि या वो इको आ रहा है। मेरा फोन था वो, सॉरी। आई कैन 1 सेकंड। या नो प्रॉब्लम, इज इट बेटर? या इट इज बेटर नाउ। ओके। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीशः कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रम नाभ्येति किम निच्छिशो परिपालनार्थम्। मैं इंदु के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा। इंदु का जन्म मित्तल परिवार में दिल्ली में हुआ। वह 4 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थी। उसका पालन पोषण बहुत लाड प्यार से हुआ। उसके परिवार का वातावरण, जैसे उन्नति ने कहा, काफी ब्रॉड माइंडेड और सेक्युलर था। उसकी पढ़ाई कैथोलिक स्कूल में हुई, कॉलेज की और स्कूल की सब कैथोलिक स्कूल में हुई, मगर उसके बावजूद भी उसका भारतीय संस्कृति में बहुत गहरा लगाव था। उसकी संस्कृति के प्रति काफी नॉलेज भी अच्छी थी और वो किसी भी टॉपिक पर बहुत अच्छी तरह बातचीत कर सकती थी और कोई भी तथ्य अच्छी तरह समझा सकती थी। उसने ओडिसी डांसिंग भी सीखी और कैलिफोर्निया में जब हम थे तो कुछ बच्चों को ओडिसी डांसिंग सिखाई। इंदु का और मेरा 36 वर्षों का साथ रहा। इन 36 सालों में की बहुत सारी यादें हैं जो सदा मेरे साथ रहेंगी और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। मैं आज जो कुछ भी हूँ उसकी बदौलत हूँ। वो कहती थी कि तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। घर का देखभाल, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, रिश्तेदारी, सब रिलेशनशिप्स उसने बखूबी निभाई। यहाँ तक कि जब मैं किसी से अपना परिचय देता तो वो यही कहते, अच्छा तो आप इंदु के हस्बैंड हैं। तो यही मेरी पहचान थी। और इंदु की धर्म में भी बहुत रुचि थी। उसकी धर्म के प्रति बहुत आस्था थी। वो जैसा कि उन्नति ने बताया कि ना तो सिर्फ अपने आप पर बच्चों को भी उसका ये रहता था कि मैं उनको धर्म सिखाऊं। और समनी जी के साथ रहकर उसने बच्चों को छोटी सी उम्र में ही भक्तांबर और लोगस्या का पाठ सिखाया। दोनों उन्नति और विभोर को लोगस्या याद हो गया था। और मुझे भी कहती रहती थी कि चलो स्वाध्याय का समय हो गया, शाम को ज्वाइन कर लो। और इंडिया जाने से पहले भी उसने ये पक्का किया कि मैं JVB कैंप के लिए रजिस्ट्रेशन कर लूं। वो बहुत उत्साहित थी कि इस दफा 10 समनी जी आएंगी, मैं कैंप में जरूर जाऊंगी। समनी जी के प्रति उसकी बहुत आस्था थी। वो कहीं भी जाती, कुछ भी बड़ा काम करती, उससे पहले समनी जी से मांगलिक सुनना चाहती, सुनती। इंडिया जाने से पहले भी उसने समनी जी से मांगलिक सुनी। और समनी जी की भी हमारे ऊपर बहुत कृपा रही। जब इंदु हॉस्पिटल में थी तो समनी जी का हर रोज फोन आता था पूछने के लिए कि आज इंदु कैसी है। समनी जी जो भी मंत्र बताती मैं उसके कान में सुना देता। बस मेरी यही आशा है कि हमारा
समनी जी के साथ सानिध्य हमेशा बना रहे और JVB के साथ भी हमारा साथ बना रहे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र राकेश जी, थैंक यू। We can all feel the grief in your family, and that's why we have gathered here to pray for her, and we pray that that she gets the Uch Gati and eventually gets the moksha. That is what we are all here for in the Manushya Gati. Next, I would like to request Devang Bhai Chitalia to say a few words. Devang Bhai. Jai Jayendra, everybody. Vandami Nama Swami Shamani ji, Upasit Bhaiyo aur Behno. We all knew Indu Jain for a very, very long time, more than probably 25 years, more as a friend, and then as a Shravak who joined JVB and was always part of our family. So this is a very sad occasion for all of us to lose one of our close associate, friend, family member, and she was very bubbly, always smiling, always energetic. And the day, like what Vijay Bhai said, that the day we heard the news, we were all shell shocked that she's no more. And it took a long time to register that that incident had happened. But unfortunately, we all had to deal with it. And more so, I got a chance to speak to Rakesh Bhai yesterday and got the entire story, what happened. And this is where Shamaniji's give us all the guidance, all the energy which we require to get through this process of our journey as a Manushya. So we all have to just be focused on what we have to do and keep doing Swadhyay, keep contemplating, introspection, because these kind of incidents are going to happen to all of us and we just have to go through it. So thank you, Jai Jinendra, Rakesh Bhai. Stay strong, Unnati and Vipur. Both of you stay very strong. Thank you. Thank you, Devang Bhai. Next, I would like to request Vandami. वीतरा को प्रणाम, आराध्य को प्रणाम। राकेश जी, उन्नति, विभोर और इनका पूरा परिवार, बंधुओं,
बहनों, जिंदगी के दो छोर होते हैं, दो किनारे हैं। एक किनारा है जहां से शुरुआत होती है जिंदगी, यानी जन्म, और दूसरा उसका किनारा है डेथ, जिसके बाद उसकी स्मृतियां रहती हैं। जन्म के साथ जहां जिंदगी शुरू होती है, उसमें पूरा जीवन होता है व्यक्ति का, और वो उस बात का साक्षी होता है कि उसने कैसा जीवन जिया है। जीवन छोटा सा होता है, लेकिन इस छोटे से जीवन में भी आदमी बहुत कुछ करके जाता है। इंदु जी, जिनको मैं 5 साल से जानती हूँ, और जानते ही नहीं, उनके भीतर में जो श्रद्धा थी, जो जैन धर्म के प्रति एक सच्चा लगाव था, जिनकी दिन की शुरुआत और दिन का एंड भी धर्म की क्रिया के साथ होता था, और जो हर पल हर क्षण अपनी हर क्रिया के साथ जैन धर्म को जोड़ने की कोशिश करते थे। उनके विचार, यानी वो बड़े ओपन माइंड से किसी चीज के बारे में सोचती थी, और सोचती नहीं, उसके बारे में स्टेटमेंट्स भी देती थी। ऐसे बड़ी, कहते हैं, एक जिंदा दिल वाली लेडी थी। और समी जी के साथ तो जहां तक मुझे याद है, उन्होंने कहा कि समी जी जब आए थे उसी साल, शायद उसी समय में हम लोग यहाँ पर आए थे, और वहीं से ही उनकी शुरुआत हो गई थी समी जी के साथ। तो एक बहुत अच्छा, एक श्रावक के तौर पर उनका एक रिश्ता था। और समी जी की तो उन्होंने बहुत हेल्प की, और भी लोगों की बहुत हेल्प की होगी, जो आप लोगों को पता हो, या फिर जिनकी हेल्प की है उन लोगों को पता होगा। लेकिन समी जी को, समी जी की हेल्प उन्होंने बहुत की, चाहे वो स्टडी की दृष्टि से हैं, या ट्रांसलेशन की दृष्टि से हैं, या उनकी गोचरी और पानी की दृष्टि से हैं, बहुत हेल्प की है। और वैरो बीच भी बुलाते थे, और वैरो बीच में बड़ा सा प्रोग्राम रखते थे, दूसरी कम्युनिटी के लोगों को बुलाते, सबके बीच में इतना प्रोग्राम करते थे। तो उन्होंने एक जीवन जो जिया, वो एक सरसता के साथ जिया, रिलीजियस बनकर के जिया। और ये भी कहने की बात है, जैसा कि उन्नति ने कहा, कि बहुत ही वो भीतर से निर्मल थी, पवित्र थी। यानी उनको कहना होता तो आपके सामने ही कह देती कि ये राइट नहीं है, ये अच्छा नहीं लग रही, ये बात अच्छी नहीं है, ये ऐसा है। वो इतना विश्वास था मंगल पाठ पर। जब भी जाते हैं, जब फर्स्ट टाइम वो यहाँ से इंडिया गए, पहले तो राकेश जी इंडिया गए थे, उनके भाई का स्वर्गवास हो गया था, और उनके आने के बाद में इंदू जी गए थे इंडिया, मंगल पाठ सुन करके गए थे। शायद लगभग 1 महीना शायद वो इंडिया रह करके आए, वापस आ गए थे। 1 सप्ताह कुछ दिन यहाँ रुके अमेरिका में, और फिर वापस गए। तो मेरे से मंगल पाठ सुन रहे थे, तो मैंने कहा आप कहाँ से सुन रहे हैं? कि नहीं, मैं आ गई थी, लेकिन अब वापस मैं इंडिया जा रही हूँ, तो मुझे मंगल पाठ सुना दो। हमने मंगल पाठ सुना दिया था।
और यहाँ तक कि वो जो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको ठीक नहीं लग रहा था अंदर से कि उनको कुछ उनके दर्द हो रहा है बॉडी में और वीकनेस लग रही है, ऐसा कुछ उनको फील हो रहा था। तो कहा समरी जी मेरे पास फोन आया। तो मैंने कहा कहाँ से फोन कर रहे हो? कि मैं इंडिया से फोन कर रही हूँ। तो मैंने कहा अच्छा क्या हुआ? तो मेरे को ठीक नहीं लग रहा है समरी जी, तो मुझे मंगल पाठ सुना दो। यानी उनकी इतनी श्रद्धा थी, उन्होंने मंगल पाठ सुना है मेरे से और मैंने कहा ठीक हो जाएगा। तो बस के समरी जी मेरा काम होते ही मैं आ जाऊंगी। मैंने कहा अच्छा है। और उसके बाद शायद 2 दिन के बाद ही राकेश जी का फोन आया और राकेश जी ने कहा कि समरी जी ऐसा हो गया, इंदु अचानक बीमार ज्यादा हो गई, हॉस्पिटल में हार्ट की प्रॉब्लम आ गई है, उसके ऑपरेशन हो गया है, अभी तक उसको होश नहीं आया। और देखिए व्यक्ति सोचता कुछ है, हो कुछ जाता है। फिर राकेश जी यहाँ से गए, हम पूरे संपर्क में रहे। जस्ट बस जिस दिन उनका स्वर्गवास हुआ उस दिन हम उनसे बस हमने फोन, जो हम टेम्पा गए थे उस दिन थोड़े से बिजी थे तो उस दिन फोन नहीं किया था हमने। बराबर मैंने खबर ली, पर एक ये सत्य है जिसमें न तो किसी की चॉइस होती है, न कभी इसको झुटलाया जा सकता है और न ही उसको रोका जा सकता है। और वो ऐसा सत्य है जिसके साथ हर किसी को जुड़ना होता है। हर कोई जुड़ता है, सब जुड़ते, जुड़े हैं और जुड़ेंगे। इस सच्चाई को जानकर के ही व्यक्ति को अलर्ट रहना चाहिए हर समय। वो हर समय अलर्ट थी धार्मिक क्रिया के लिए। राकेश जी को इतना मोटिवेशन देती थी तो खुद भी उतना ही करती थी, उससे ज्यादा करती थी। कभी वो एकासन कर रहे हैं तो कभी आइंबिल कर रहे हैं तो कभी मंत्र का जाप कर रहे हैं, कभी कोई साधना ध्यान की कर रहे हैं, यानी निरंतर उनके जीवन में चलती ही रहती थी। और इवन यहाँ तक अपने बच्चों को भी उतना ही मोटिवेट करती थी, चाहे वो उन्नति है या विभोर है। दोनों को बार बार साल में 2-4 बार हमारे से भी बात करवा देती और उनको क्या करना है, कैसे करना है, हर चीज के साथ जुड़ी हुई थी। वो आत्मा कहीं भी है, जहां भी है, वह अपने आध्यात्मिक जीवन के साथ जरूर जुड़ी ही रहेगी। क्योंकि एक सत्य है कि सबसे बड़ा कि अगर हम देखें कि दुनिया में जितने भी संबंध हैं वो तो क्या है, संयोग वाले हैं। भगवान ने कहा एगो में सासो अप्पा नाण दंसण संजुओ शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। देखिए क्या है, भगवान ने क्या कहा, एक आत्मा शाश्वत है। कौन सी? जो ज्ञान दर्शन चारित्र वाली है। शेष जितने भी भाव हैं वो संयोग संबंध वाले हैं। आपने मकान बनाए हैं, ईंट ईंट को जोड़ करके बनाया है, और जो जोड़ा है वो एक दिन बिखर भी जाएगा। इस संसार में आकर के हम सारे संबंध बनाते हैं। माँ बाप का संबंध बनता है, भाई बहन का बनता है, पति पत्नी का बनता है। ये सारे संबंध हम यहाँ आकर के बनाते हैं और फिर यही हमारे छूट जाते हैं। इस सत्य को कोई भी झुटला नहीं सकता कि ये संबंध हमारे टूटने वाले हैं। आदमी भले ही अपने दिमाग से कुछ भी सोचेंगे, लेकिन होता तो यही है। और राकेश जी बहुत ही संभले हुए
पर्सन हैं, व्यक्ति हैं, और वे बड़े निश्चिंत थे इंदु जी की वजह से, फैमिली की तरफ से। लेकिन अब राकेश जी को इंदु जी की पूर्ति करनी है और बच्चों का जो आपको पूरा का पूरा दायित्व निभाना है, इंदु जी का भी और आपका अपना भी दायित्व निभाना है। पर हम ये सोच सकते हैं कि हमें जीवन में करना है, उसके लिए समय का इंतजार नहीं करना है। और आप सही मानेंगे, देवांग भाई का मेरे पास फोन आया कि समी जी आपको पता है क्या इंदु जी को कुछ हुआ? मैंने कहा वो बीमार हॉस्पिटल, वहां तक कि मुझे सारी घटना पता है। तो क्या समी जी ऐसा समाचार मिला है? मुझे खुद को विश्वास नहीं। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया? अरे अचानक ऐसे कैसे हो गया? ठीक है, हार्ट का ऑपरेशन हुआ, बीमार हुए, ठीक हो जाते। पर कभी कभी हम सोचते हैं वो हो, ये जरूरी नहीं होता है। बस यही तो बात है कि यहीं आकर के तो वो आत्मा कहीं भी है, उन्नति विभोर जहां भी है, वो आपके बीच में ही है, कहीं दूर नहीं है। हाँ, फिजिकली वो विजिबल नहीं है तुम्हारे सामने, लेकिन वो आत्मा जहां भी है उसके बारे में ये सोचो कि वो आत्मा कहाँ जहां भी है वो अपना आध्यात्मिक विकास करे और अपनी लक्षित मंजिल को प्राप्त करे। ऐसा चिंतन करने से, क्योंकि वो बहुत कुछ आपके बीच में बिखेर करके गई है, बहुत कुछ बीज के रूप में आपको देकर के गई है। उन बीजों को अब आपको फलवान बनाना है, उन गुणों को अपने भीतर में विकसित करना है। उन सारे गुणों को अपने भीतर में विकसित करना है, उजागर करना है। तो हर समय आप अपने साथ इंदु जी को देखेंगे और पाएंगे। मैं जानती हूं कि जहां भी ऐसी घटना घटित होती है, जिनके साथ होता है, उनके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है सहन करना। लेकिन हम जानते हैं कि जहां हम करेक्शन नहीं कर सकते, वहां पर करेक्शन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम अब वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं और वो चीज कभी वापस हमारे बीच में आ भी नहीं सकती है, तो हमें उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। सोचना ये चाहिए कि वो आत्मा जहां भी है वो प्रसन्नता के साथ अपने भावी गंतव्य स्थल को प्राप्त करे, जहां उसे पहुंचना है। और हम अपनी एनर्जी को इसमें भी वेस्टेज न करें कि माँ आएगी वो करेगी, नहीं, ये सत्य है, हमें इसे स्वीकार कर लेना है। उन्नति विभोर दोनों बच्चे समझदार हैं, कई बार हमारी बात भी होती है उनके साथ, बहुत अच्छे हैं और दोनों को और अच्छा करना है। और उन्नति को तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, पापा की और भैया की, दोनों के लिए। तो जिंदगी के इन्हीं क्षणों में पता चलता है कि हम जीवन को कितना समझ पाते हैं। हम सोचें, चिंतन करें। कितना सुंदर आचार्य महाप्रज्ञ जी ने लिखा है, आए आए
हम आए अपने घर भीतर आए, अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाए। आए आए हम आए अपने घर भीतर आए, अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाए। कई बार हम क्या समझते हैं, मैं समझ रहा था तन को यह मेरा अपना घर है, मैं समझ रहा था मन को यह मेरा ही अनुचर है, पर टूट गया भ्रम मेरा जीवन में ज्योति जलाई, अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाए। हम समझते हैं ना कि क्या समझते हैं, ये शरीर जो है ना हमारा घर है, बस ये मैं इसमें हमेशा रहूंगा, ऐसा सोचते हैं। और ये मन तो क्या है, मेरा नौकर है, मैं जैसे चलाऊं वैसे ही चलता रहेगा। पर होता क्या है भाई, जब इस सत्य से सामना होता है तभी भ्रम टूट जाता है कि वास्तव में कोई किसी का नहीं है। भगवान ने कहा नालम ते तव ताणाए वा शरणाए वा, तुमंपि नालम ताणाए वा शरणाए वा, कि तुम्हारा वो त्राण और शरण नहीं है और तुम भी उनके त्राण और शरण नहीं हो। है क्या कोई किसी का त्राण, किसी का रक्षा कर सकता है? कोई कोई किसी को शरण दे सकता है? नहीं। तो दूसरा आपको नहीं दे सकता और आप दूसरों को नहीं दे सकते। आप किसी के रक्षक नहीं बन सकते, आप किसी को शरण नहीं दे सकते। जब ये परिस्थिति आती है उस समय कोई किसी को नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं बचा सकते। ये एक बहुत यूनिवर्सल ट्रुथ है कि मौत को, जिंदगी के इस शोर को कोई नहीं। अरे भाई एक एक किनारे पर जब जन्म लेते हैं तब एक अग्नि शुरू होती है जलनी, वो धीरे 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 चलते जलते 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 और एक समय आता है तो पूरी जल जाती है। ठीक वैसे ही हम जन्म लेते हैं तब से हमारी आयु क्षीण होनी शुरू होती है। हम कहते ओ बच्चा 6 महीने का हो गया, 1 साल का हो गया, 2 साल का। बर्थडे जब पैदा होता है बच्चा, फर्स्ट बेबी आता है तो क्या करते हैं, 1 महीने का भी बर्थडे मनाते हैं, दूसरे महीने का बर्थडे, तीसरे महीने का, चौथे महीने का, 5वें महीने। खुश होते बच्चा बड़ा हो रहा है। वो बड़ा नहीं हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। हमारी उम्र के दिन तो घटते जा रहे हैं, हम कहते हैं हम बड़े होते जा रहे हैं। यही तो भ्रम पल रहा है ना। तो इस सत्य को जानना, ये भ्रम जो है वो टूट जाता है। बस चिंतन क्या करना चाहिए, मैं कौन कहाँ से आया है और कहाँ पर जाना, क्या है मेरा अपना वह मैंने न जिसे पहचाना।
हम भूल हम भूत और भावी से अब वर्तमान में आए, अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाए। आए आए हम आए, अपने घर भीतर आए, अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाए। तो ये चिंतन करना है कि हम सुखी बन जाए। कौन हूं मैं, कहां से आया हूं और कहां मुझे जाना है, ये चिंतन सतत हमारी स्मृति में रहना चाहिए। लेकिन हम इस एक छोटे से जीवन में उलझ इतने जाते हैं, भूत और भावी की चिंता में इतने हम उलझ जाते हैं कि वर्तमान हमारे हाथों से छूट जाता है। आवश्यकता तो ये है कि हम वर्तमान को पकड़ करके रहें। वर्तमान में जो जीता है उसका भूत भी अच्छा होता है और उसका भविष्य भी अच्छा होता है। क्यों इस क्षण का वर्तमान अगले क्षण के लिए वो अतीत बन जाता है। इसलिए हमारा जीवन हाँ, तो इसलिए हम इंदु बहन ने, इंदु जी ने जो सेवाएं दी हैं उनको हम याद करें और उन सेवाओं के बारे में उनका जो चिंतन था, जो उनकी सोच थी, एक थोड़ी सी हटकर की सोच थी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इंदु जी को इंडिया से बहुत प्रेम था, भारत से। और ऐसा लगता जब वो कभी कभी बात करती ना, तो ऐसा लगता था कि जैसे उनके कण कण से वो भारत के लिए कोई ऐसे निकल रहे हैं, स्फुलिंग निकल रहे हैं, ऐसा लगता था उनकी बॉडी से। यानी इतना सोचते थे इंडिया के बारे में, इंडिया के लोगों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते थे। और इसीलिए शायद अपनी उस माटी के साथ उनका इतना प्रेम था। और वहीं अपने वतन में उन्होंने अपनी सांसें अंतिम ली। मैं मंगल कामना करती हूँ कि जहां भी वो आत्मा है वह अपनी आध्यात्मिक उन्नति करते रहें और आगे से आगे बढ़ती रहें। ओम अरहम, ओम अरहम। हमारे साथ आदरास्पद समनी प्रतिभा प्रज्ञा जी भी हैं। और आप तो हाँ, आदरास्पद मधु प्रिया सिंह जी भी शायद जुड़ गए, हाँ जुड़ने वाले हैं। तो आप तो शुरू से यहाँ पर आए हैं और आपने शुरू से इंदु जी को जाना है। मैं तो सिर्फ अभी जान रही थी इन 5 सालों से, लेकिन आदरास्पद मधु प्रिया सिंह जी तो स्टार्टिंग से जानते हैं। और उसके बाद समय आदरास्पद समनी प्रतिभा प्रज्ञा जी समनी जी पधारे थे, तो वो सब जानते हैं उनके बारे में। तो आपके एक्सपीरियंस उनके बहुत ही रहे हैं, तो आप उनके मुखारबिंद से सुनेंगे। हाँ मेहू भाई। जी वंदामी, समनी जी नाम से है, आप देखिए। समनी जी, ओके। आदरास्पद समनी प्रतिभा प्रज्ञा जी।
हाँ, समणी जी नाम से। हम्म। अगर नामी आप वीडियो और ऑडियो स्टार्ट करेंगे? नामी आपकी आवाज नहीं आ रही है। फेस भी नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा फेस कटिंग। मधुर दोनों के नाम है, तो पहले प्रतिभा पेयसन जी को, फिर मधुर पेयसन जी को। मधुर पेयसन जी तो है, जिज्ञासा पेयसन जी। हाँ, वंदा भी नहीं स्वामी। कौन? नहीं, जुड़े हुए हैं स्वामी। मधुर प्रज्ञा जी वंदामी वंदामी मधुर प्रज्ञा जी जुड़े हुए हैं। हाँ, वंदामी आप अपना ऑडियो वीडियो स्टार्ट करेंगे तो फिर ये वीडियो तो स्टार्ट है, लेकिन नहीं, मधुर जिज्ञासा प्रज्ञा जी का नहीं है। जिज्ञासा भी थोड़ा सा ठीक से रखो। हाँ, हो गया होगा। अच्छा, लैपटॉप पे करो ना, इजी हो। जी वंदामी। हाँ। बोलो। वृंदावन से इंदु जी की स्मृति सभा रखी गई है, तो आप फरमाए। आदरणीय समनी जी, उपस्थित राकेश भाई और उनका पूरा परिवार एंड भाइयों एवं बहनों, कुछ दिन पहले समनी जिन प्रज्ञा जी ने मुझे अचानक बताया कि इंदु अब नहीं रही है। सुनकर के थोड़ा सा मन को ऐसा लगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसका फोन आया था मेरे पास में, और जब उसे पता चला कि मैं ह्यूस्टन आई हुई हूँ, तो उन्होंने पूछा, समनी जी आपका क्या प्रोग्राम है, क्या आप ओरलैंडो आ रहे हैं? नहीं तो मैं आपके दर्शन के लिए ह्यूस्टन जरूर आऊंगी। मैंने कहा नहीं, हम कैंप में आ रहे हैं। और उसने कहा तब ठीक है। और उसके बाद एक दिन फिर उसने मेरे से बात की थी, अपनी कुछ प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर की थी, और मैं उसको बहुत पहले से जानती हूँ, कितने वर्षों से उसके साथ परिचय है। अनेक बार हम वेरो बीच गए, उसके घर भी रहे, और मुझे याद है जब मैं सेंटर में थी तो वो यदा कदा आती रहती थी, उसकी भावना भी रहती थी, और अपने बच्चों को भी लेकर के आती थी। राकेश की तो ऑलरेडी भावना रहती ही है, बड़ा धार्मिक है, और बच्चों को भी कितनी बार लेकर के आती थी। विभोर को और उन्नति को मन में एक प्यास थी कि मेरे बच्चों में अच्छे संस्कार आए, धार्मिक संस्कार आए।
और वो स्वयं भी धार्मिक वृत्ति वाली थी। मैंने देखा वहाँ रहते हुए भी, क्योंकि ऑरलैंडो सेंटर उसके घर से काफी दूर था, फिर भी उसके मन में हमेशा एक जिज्ञासा बनी रहती थी कि मैं ज्यादा पहुंच सकूं वहाँ, कुछ सीख सकूं, कर सकूं। और कई बार फोन पर भी चर्चा करती रहती थी, लेकिन पता नहीं चलता है व्यक्ति के साथ कब क्या घटित हो जाए। और इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो समय उपलब्ध है व्यक्ति उस समय का सदुपयोग कर ले, पता नहीं अगले क्षण क्या हो सकता है। तो मैंने जब इस बात को सुना, मुझे थोड़ा सा भीतर से महसूस हुआ कि शायद वो असमय में चली गई, क्योंकि जब कभी उससे बात करते थे वो प्राय फिजिकली फिट थी, मेंटली भी बड़ी स्ट्रांग थी, इमोशनली भी स्ट्रांग थी, और स्पिरिचुअल भी उसके मन में काफी भावना रहती थी। सब प्रकार से स्ट्रांग होते हुए भी पता नहीं कैसे अचानक क्या घटित हो गया और वो इस संसार से चली गई। व्यक्ति चला जाता है, लेकिन जीवन में जो कुछ करता है वो हमेशा साथ रहता है। और मुझे ऐसा लगा कि उसके मन में जेवीबी के प्रति भी बहुत भावना थी, दिल से जुड़ी हुई थी। और जब हम वहाँ थे, उन्नति और विभोर छोटे थे, प्राय प्राय वह संडे के स्वाध्याय में उनको लेकर के आती थी, ताकि बच्चों में भी धर्म के संस्कार आए। और मुझे जहाँ तक ध्यान है, शायद उन्नति तो बहुत छोटी थी, उसने पूरा भक्ता में भी सीख लिया था, काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था उसने। तो बहुत सारी बातें उसके साथ जुड़ी हुई है। और कभी कभी उसने कुछ बातों का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किया था। एक बार समनी जी के साथ एक बुक का ट्रांसलेशन भी किया था। तो उसका जेवीबी के साथ बड़ा लगाव था, या यूं कहूं कि उसके मन में कुछ पाने की भावना थी, और असमय में चली गई। भाई राकेश के लिए ये घटना बहुत दर्द भरी हो सकती है और है, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैंने भाई राकेश से भी बात की थी, और मैंने कहा जो कुछ हुआ वह तो दुखद है ही, लेकिन अब तुम्हें अपने आप को संभालना है, मेंटली और ज्यादा स्ट्रोंग बनना है, क्योंकि अब तुम्हें अपने बच्चों के लिए दोनों का दायित्व निभाना है। और मैं राकेश को भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि वह बहुत कम बोलता है। राकेश, मैंने देखा, हम उसके घर कई बार रुके भी, मैंने देखा इंदु तो फिर भी बातें करती रहती थी, लेकिन राकेश बहुत कम बोलता है, लेकिन वो समझता बहुत ज्यादा है। और उसके मन में धर्म के प्रति भी एक गहरी आस्था है, और वह केवल आस्था ही नहीं, मैंने देखा वह धर्म को जीता भी है अपने जीवन में। तो मैं भाई राकेश के लिए यही कहना चाहूंगी, राकेश, अभी जो क्षण तुम्हारे जीवन में उपलब्ध हुए हैं, तुम्हें और ज्यादा भीतर से स्ट्रोंग बनना है, और धर्म को जिया है और धर्म को जीने का अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ है, क्योंकि इन परिस्थितियों में धर्म ही एक व्यक्ति के लिए ऐसा आलंबन होता है जिसके सहारे व्यक्ति अपने असहनीय दिनों को भी पार कर सकता है। तो उन्नति और विभोर, जिनके लिए तो ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि इतनी छोटी अवस्था में माँ का साया उठ जाना बच्चों के लिए कितना कष्टप्रद हो सकता है, ये सब जानते हैं। लेकिन वे भी अपनी हिम्मत को बनाए रखेंगे, माँ के आदर्शों को सामने रखेंगे, और जो कुछ संस्कार माँ से पाए हैं उन संस्कारों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। तो मैं भाई राकेश और उन्नति और विभोर, उनको यही कहना चाहूंगी कि इन दुखद घड़ियों में भी आप अपने मनोबल को मजबूत रखें, धर्म का सहारा रखें, और जब कभी आपको समय उपलब्ध हो, आप ऑरलैंडो में समनी जी के पास जाकर के, क्योंकि शुरू से जुड़े हुए हैं और आप बहुत से वहाँ के भाई बहनों को भी जानते हैं, हर बार कैंप में भी आते हैं,
तो बहुत अंतरंगता से जुड़े हुए हैं, और आप वहां जाएंगे तो शायद अपना दुख भी हल्का हो पाएगा और कुछ सुन भी पाएंगे, और लोगों से मिलकर के आप अपने जीवन में कुछ थोड़ा अलग अनुभव कर पाएंगे। तो इस समय में जेवीबी भी अपने दायित्व का निर्वहन करें कि जब कभी किसी के घर ऐसी स्थिति घटित होती है तो साधार्मिक भाई, जिसे हम कहते हैं, केवल साधार्मिकता का मतलब साथ बैठकर खाना ही नहीं है, बल्कि सुख दुख में साधार्मिक वात्सल्य को निभाना, ये सबसे बड़ा साधार्मिक वात्सल्य होता है। और उस समय व्यक्ति को किसी की आवश्यकता होती है कि जब कठिन परिस्थिति है उस समय हम उसके लिए आलम्बनभूत बने, सहारा बने। तो मैं आशा करती हूँ कि जेवीबी के भी सभी भाई और बहन इस समय भाई राकेश के साथ रहेंगे, कभी उससे बात भी करें, विचार भी शेयर करें, ताकि उसका मनोबल बढ़ता रहे, आत्मबल बढ़ता रहे। क्योंकि झेलना तो परिस्थिति को उसको है, लेकिन जैन दर्शन तो निमित्त को भी बड़ा महत्व देता है। उपादान तो उसको स्वयं को मजबूत करना है, लेकिन निमित्तों का भी बड़ा महत्व है, और निमित्त भी बहुत बार व्यक्ति के उपादान को मजबूत करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं, सहायक बन सकते हैं। तो सबके सहयोग से भाई राकेश इस कठिन परिस्थिति से उभर करके ऊपर आएगा और अपने जीवन में और ज़्यादा आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, और अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार देते हुए और माँ का दायित्व भी साथ में निभाते हुए बच्चों को भी आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेगा। और मैं उन्नति और विभोर को भी कहना चाहूँगी कि वो भी अपने मन को मजबूत रखें और बहुत कुछ सहन करते हुए आगे बढ़ना है, अपने फ्यूचर को और अच्छा बनाना है, और ऐसा सोचना है कि वो उनके मम्मी की शक्ति भी उनके साथ काम करेगी और वो आगे बढ़ सकेंगे। तो इस अवसर पर दिवंगत आत्मा के प्रति मैं मंगल कामना करती हूँ कि जहाँ भी उसकी आत्मा हो, उसकी आत्मा को शांति मिले, क्योंकि उसने बहुत कुछ किया है, लेकिन जाना तो किसी के हाथ में नहीं है। जैन आगम कहते हैं संजोगा विप्प मुक्कस्य, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी होता है। तो इस वियोग की शाश्वत घटना को समझते हुए राकेश का परिवार भी इस घटना से ऊपर उठने का प्रयत्न करेगा और समभाव के साथ सहन करके आगे बढ़ेंगे। ओम अरहं। वंदनामी मधुप्रज्ञा स्वामी जी। नेक्स्ट हम प्रतिभा प्रज्ञा जी भी इधर है। वंदनामी। नहीं, प्रतिभा प्रज्ञा जी आप की आवाज म्यूट है शायद। आपकी आवाज नहीं है। आप म्यूट है, अनम्यूट करो आप अपने आप। दिखा रहा है आप म्यूट है। पोस्ट कर वो आप देखिए ना मेहुल भाई, आप कीजिए ना। हाँ, मैं देखता हूँ। नहीं, मैं बोले तो सही आस्क कर रही हूँ। इस पे लिखा प्रतिभा प्रज्ञा होस्ट म्यूट दिखा रहा है। हाँ, वंदामी नमन सामी, आदरास्पद समणी मधुर प्रज्ञा जी और समणी जैन प्रज्ञा जी। जैसा कि वंदामी ने बहुत सारी बातें कही, संसार जिसे हम असार कहते हैं, और उस असार संसार में हम देख रहे हैं कि सारभूत क्या है। वह सारभूत है धर्म। आज हम देख रहे हैं कि भाई राकेश का परिवार इंदु को खो करके अब सबके साथ जुड़ा हुआ है। और मुझे भी याद है जब 25 वर्ष पहले आए थे, और उस समय आदरास्पद मेरे निर्देशिका जी समणी मल्ली प्रज्ञा जी थे,
और बहुत बार हमारा वेरो बीच भी जाना हुआ और आप लोगों की भी निरंतर गोचरी होती रही, समणी जी की सार संभाल होती रही। तो आज एक ऐसा परिवार जो भक्ति भावना से जुड़ा है, संस्कारों से जुड़ा हुआ है और समणी जी के आध्यात्मिक संपोषण से जुड़ा है। वंदामी आदरास्पद मधुर प्रज्ञा समणी जी ने काफी बातें फरमाई, तो सचमुच ऐसा ही परिवार है। और हमारे आने के बाद हम सोच ही रहे थे कि जब ओरलैंडो जाना होगा और प्राय कैंप में इनका तो आना होता ही है, तब शायद मिलना होगा, लेकिन कौन जानता था कि ये नियति इस प्रकार एक बड़ा इम्तिहान लेकर आई है। कोई नहीं जानता, लेकिन ये पल हैं अपने आप को जानने के और परिवार को संभालने के। ये पल है अपनी धार्मिकता की कसौटी करने के। तो इस समय आपको जैन विश्व भारती परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी की शिष्याएं समणी जी, जिनका योगदान आपके जीवन में है, तो जैन विश्व भारती को सजाने संवारने में भी आपका बड़ा योगदान रहा है। आप जब कभी चाहे आज दोनों ही, जिन्हें बच्चे क्या कहें, बचपन में देखा था, लेकिन उन्नति और विभोर अब युवा हैं और वे पापा का भी ध्यान रखेंगे, अपने आप का भी ध्यान रखेंगे। और दिस इज द टोल टाइम, दिस इज द कोल टाइम फॉर द सोल। और ये समय है कि शरीर से वे माँ से जुदा हैं, लेकिन आत्मा से माँ से जुड़े हुए हैं। तो वह आत्मा की अनुभूति उनके आसपास निरंतर उनके भावों में, संस्कारों में बनी रहे। दिवंगत आत्मा के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करती हूँ कि एक दिन वो सिद्ध बुद्ध मुक्त बन संसार के आवागमन को ओछा करके आगे बढ़े, आध्यात्मिक उन्नति करे। वंदामी समणी जी, अभी हम 2 मिनट के लिए इंदु जी के लिए मौन करेंगे। उसके बाद मैं वंदामी से मंगल पाठ के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। 2 मिनट के लिए मौन। लोगस्सुज्जोयगरे धम्मतिथयरे जिणे अर्हन्ते कित्त इत्सं चौवीसंपि केवली उसभमजियं च वन्दे संभवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमपहं सुपासं जिनं च चन्द्रपहं वन्दे सुविहिं च पुष्पदन्तं सीयलसिज्जंस वासुपूज्यं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्तुमहारं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्वयं नमिजिनं च वन्दामि रिक्थनेमिं पासं तः वर्धमानं च एवं मयेऽभिधुवा विहूय रयमलापहीन जरमरणा चौवीसंपि जिनवरा तिथयरा मे पसीयन्तु कित्तियवन्द्यमये जे लोगस्य उत्तमा सिद्धा
आरोग्यबो हि लाभम् समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्देषु निर्मलयरा आयिच्येषु अह्यं पयासयरा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु ओम शांति। नवी मंगल पाठ। वरना भी आप अनम्यूट करें अपने आप को, म्यूट है। मेहुल भाई आप कर दीजिए ना। नवी मंगल। हाँ। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलख स्मरण किया सरे अचिंत्य काम सरे अचिंत्य काम सरे अचिंत्य काम। नवी नमन। हाँ अरहम। ठीक है। सबको अनम्यूट कर